हमनी के देश के निर्माण करे होला महान विभूति स शिवसागर रामगुलाम की 125वीं वर्षगांठ के संदर्भ में हमनी के देश में कई गो प्रकार के गतिविधि के आयोजन होल बाटे। सब कोई के नमस्ते और आदाब। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ई वक्त हमनी पॉम्प्लेमुसेस स्थित एसएसआर बोटानिकल गार्डन में है सा, और हमनी के पाछे में शातो दे मोंप्लेजियर बाटे, जहाँ पर हिया परी आसिया के बगल से एगो चित्र प्रदर्शनी लगावल जाता। चला आज हमनी देखब जा कि हमनी के देश के अलग अलग प्रकार के जो चित्रकार बाटे किस प्रकार के पेंटिंग्स कर ले हवन जा। एकर संगे संगे आसिया के जो प्रधान बाटे श्री निशाल पबू के सानिध्य में कौन प्रकार के कलात्मक काम होल बाटे। हमनी के संगे जुड़ जाइए जा। देखा है जोन लिगेसी की एक्सपोजिशन होल देखा, जैसे देखा तो एकर शुरुआत होल हमके चेयरपर्सन जोन भाई रेगनी वो के वो ओकर लीडर है। तब ओकर जोन डायरेक्ट्रिस बा है एसएसओ बोटानिकल गार्डन के मैडम दरबारी, सब मिलजुल के एगो टेम हमनी बनाई सब। वो जो टेम्वा जैसे बोलते हैं सर लिगेसी, वो हमनी के चाचा एसएसओ के जीवन के सब जो डिफरेंट एताप बा, हाँ ओकर में बाजे हो के सब लोग आर्टिस्ट हमनी के वेटेन आर्टिस्ट बा, वो वेटेन कलाकार सब लोग एक लिमोशन खातिर एक लिमोशन बाजे एगो क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन एगो चित्र बनैलन छ अपन सोच से। तो है जो देखा हो है होला बोलब से 1 महीना में बनल। जोन कलाकार 25 गो कलाकार है में पॉट्स पे करलक, वो लोग अपन आर्टवर्क बनैलन छ। और ई एगो जैसे क्यूरेटरशिप बोलीला छ सिलेक्शन होल, वेटेन मेयर सिलेक्शन होल। तब है जो प्रदर्शन देखो तो वो गाने जो Let me tell you that first of all, it is an honor to stand before you today to commemorate the momentous occasion, the 125th birth anniversary of Sir Sagar Ramgoolam, the father of our nation. For those of us who have grown in an independent, stable and prosperous Mauritius, it is easy to take for granted the freedom and opportunities we enjoy. But we are here today to remember the man who made it all possible. Sir Sagar Ramgoolam was a visionary leader who dedicated his life to the betterment of our society. He was not just a politician, but a doctor, a journalist, and most importantly, a thinker who believed that the true liberation of a nation lies in the empowerment of its people. His fight for independence was not an end in itself, but it was also a mean to an end, the creation of a new inclusive society where every Mauritian, regardless to their backgrounds, could thrive. We are doing this exposition in order to expose the legacy of Sir Sagar Ramgoolam and all his visions through the artist's concepts and so on.
First of all, for the exhibition itself, we wanted something different that was never done before. We wanted to involve the local artists of Mauritius, across Mauritius, so that they come and give us a different insight to tell us about the vision and the legacy of Sir Shivsagar Ramgoolam. At board level, we approached the ACA, an organization led by Mr. Nishal Parbu, who we got in contact with him, and we expressed exactly what we are trying to exhibit. And he came along with his team. We sat down, we worked on a lot of stuff, and that's where everything started. So today you can see for the whole 2 weeks that the exhibition is at the garden. It's going very well. We are receiving a lot of guests as well, a lot of visitors who are very happy with the exhibition because it is something very different and different concept as well from what they have seen previously. It's true to say that most of the people who walks into SSRBG, they come because of the biodiversity, they come because of the tranquility that the garden offers. But this time it's a bit different because of the exposition about the legacy and the visions of our father of the nation, Sir Shivsagar Ramgoolam. We are having different kind of visitors itself. Most of the people who have come here, they have been praising the exhibition in itself because, like I said, it is something they are discovering for the first time, and it's giving the garden itself a different aspect of itself. We have something new to propose to people who walks in the garden on a daily basis, and it has bring a change for the garden. ये पेंटिंग मैं डेडिकेट की है सर शिवसागर रामगुलाम जी को, जो हमारे देश की फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं। मैं उन्हें पॉम्प्लेमूस बोटानिकल गार्डन के अंदर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ की जायंट वाटर लिलीज और स्ट्रॉन्ग ट्रीज उनके विजन और लीगेसी को सिंबल है। ये दिखाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी हमारी मिट्टी, हमारी कल्चर और हमारी ग्रोथ में जिंदा है। मैं अपने माइक्रोस्कोपिक स्किल्स यूज़ किए, जैसे लीव्स, सेल्स और टेक्सचर्स को डिटेल में स्टडी करना। ये एलिमेंट इसीलिए ऐड किया क्योंकि लीगेसी सिर्फ अपर से नज़र आने वाली चीज़ नहीं होती। जो फाउंडेशंस होती हैं, वैल्यूज, सैक्रिफाइस और विजन, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं और वही एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। मेरी ये होप है कि लोग इंस्पायर और समझ सके कि लीगेसी को कंटिन्यू करने हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गार्डन के करे की ज़रूरत होती है ताकि वो पाले पूले, वैसे ही हमारी सोसाइटी को भी यूनिटी और कमिटमेंट की ज़रूरत है। ये पेंटिंग और एक ट्रिब्यूट भी है और एक रिमाइंडर भी कि हमें अपने रूट्स को प्रिजर्व करके फ्यूचर को अब सस्टेनेबल और होपफुल बनाना है।
मेरी ये होप है कि लोग इंस्पायर हो और समझ सके कि लीगेसी को कंटिन्यू करना है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गार्डन को करे कि ज़रूरत होती है ताकि वो फले फूले, वैसे ही हमारी सोसाइटी को भी यूनिटी और कमिटमेंट की ज़रूरत है। ये पेंटिंग ट्रिब्यूट भी है और एक रिमाइंडर भी कि हमें एक अपने रूट्स को प्रिजर्व करके फ्यूचर को और सस्टेनेबल और होपफुल बनाना है। ये ऑथर का टाइटल है ब्लूमिंग इटर्नल लेगेसी। मैंने इसे बनाया क्योंकि इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सर शिवसागर रामगुलाम जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी। थीम था नेचर, प्लांट्स और आइडेंटिटी। उनका पोर्ट्रेट मैंने बनाया है रेडिएंट कलर्स जैसे ग्रीन, ब्लू और येलो में, जो वाइटलिटी, रेजिलियंस और प्रोग्रेस को दिखाता है। पोर्ट्रेट के साथ मैंने फॉलिएज, पाम ट्रीज और लोटस फ्लावर्स ऐड किए हैं। लोटस सिंबल है प्योरिटी और नेशनल आइडेंटिटी का। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एसएसओजी का लेगेसी सिर्फ एक मेमोरी न लगे, बल्कि एक लिविंग गार्डन की तरह लगे, deeply rooted but always living with life and hope। तो सबसे बड़ा चैलेंज था उनकी पोर्ट्रेट को नेचर के साथ स्मूथली ब्लेंड करना, ताकि दोनों अलग अलग एलिमेंट्स लग ना सके। दूसरा चैलेंज था कलर्स बैलेंस करना, ग्रीन और ब्लू के साथ गोल्डन एक्सेंट को हार्मनी में लाना। टाइम की बात करूं तो मुझे अराउंड 2 वीक्स लगे फ्रॉम कॉन्सेप्ट स्केचेस से फाइनल एग्जीक्यूशन, लेकिन प्रोसेस रिवॉर्डिंग था क्योंकि हर लेयर के साथ पेंटिंग ज्यादा अलाइव फील होने लगी। ऐसे दिखबा तो ओकर में बहुत रंग नहीं बा, बहुत साधारण एगो ग्रे स्केल पेंटिंग है। सेमा ओकर मिसाज हो बा, जो लिम्बुसों बा ओकर भीतर बहुत मीनिंगफुल बा, जो जैसे हाथ मिलावत होन सा एकर में दिखबा तो मेरे तेरा एगो एगो ह्यूमैनिटेरियन इडोल है। ओके, बहुत अपन जीवन उस सर्विस ह्यूमैनिटेरियन सर्विस में बिता दिलक। और ये हमनी के जो सर शिवसागर रामगुलाम जो पे दिला नासों बा ओकर विजन से जो दिग्बा मुरिश कहाँ आल ओकर विजन से आल तो दिग्बा तो पॉलिटिक और जो ह्यूमैनिटेरियन के जो मिलाप बा है में दिग्बा ओकर में और बहुत फिलोसफी बा, लापे की मिसाज बा, एगो लापे मोंडियल देखबा पसी दुगो पी दुगो नासों और मोंडियल पसी जो मेरे तेरेसा बा वो खाली अपन पे के नहीं दिखेगा, मोंडियल के दिखेगा। तो है जो चित्र बनाई ओकर में है सब कुछ बसल बा। और देखबा तो पंचियावता एकर में एगो पॉजिटिव वाइब बा, जो ऐसा विब्रासों में से जो बैठल सा तो वो लापी आना था, पॉजिटिव आना था। है चित्र में देखबा तो मेरे तेरेसा वो सफ़ेद कपड़ा पहनेगा तो सेमा एगो बड़का पर्सनालिटी बा। महात्मा गांधी वो खाली सफ़ेद सेमा ओकर जो आँखों बा बड़का बा तो है आर्ट वर्क बा है चित्र ओकर में बहुत रंग नहीं डाली सेमा ओकर मीनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बा, बहुत गहरा बा।
देखा एगो हमने के ससीसागर रामगुलाम के एगो म्यूजियम बा पोली में हम गए नहीं विजिट करे हौजा बहुत फोटो बा आर्शीव बा है एगो परमिशन रहल जोन एसएसओ बोटानिकल गार्डन के फंड के ट्रस्ट वो सुने कर लग फैसिलिटी कर लग तो हम जब गए नहीं तो हमारा परमिशन मिलल कि हाउ फोटो के एगो आर्शीव लेके और हम सिलेक्शन करनी जो डिफरेंट एटाप बा एसएसओ के जोन ओकर जोन जीवन के डिफरेंट एटाप बा तो ओकरा हमने पहुँचासे करनी सर ऑटिस में तो तू मिड ओकर जोन जोन लाभोचे रहल पॉलिटिक के तू है कर एगो मेडिसिन के जोन वो एगो मेडिसिन रहल तो ओकर जीवन जो जैसे मेडिसिन कितना आदमी के एडी करलक सेवा करलक तो एगो ऑटिस्ट ओकर में बासे करलक तो हम कनी मेटे के साथ एगो फोटो से अपन इंटरप्रिटेशन अपन टेक्निक लेके तो सब जोन ऑटिस्ट में एगो गिद रहल हमने डिपोर्टाजे करनी था तू हाई कर तू हाउ कर से हमने जानी जा सक कि ऑटिस्ट कौन चीज में जस्ती अच्छा बा अपन एक्सप्रेशन करे अपन मिसाज पासे करे के तो और एगो विजिट रहल जॉर्डन के जहाँ पर ही हमने फोटो लेनी सर बोटानिकल गार्डन के तो एगो मेलॉन्ज रहल इंटीग्रे होल तो हाउ हमने पाके एगो फोरम बनैनी सर जेकर में हमने फोटो से के लिए करनी सर तो और एगो एगो अप्रूवल रहल तो तू हाई फोटो ले थे तो हाई हाउ आर्टिस्ट हाउ फोटो नहीं ली रिपीटिशन है से देखबा तो एगो जोन जोन फ्लेकमल बा जोन वाटर लिली बा उस तो हमने के बोटानिकल गार्डन के लॉम्ब्लेम है हाँ तो उस थोड़ा बहुत सब हाँ सब बहुत जोन वर्कशॉप और लाइव पेंटिंग होल ओकर में मतलब से एगो 15 आर्टिस्ट आल वो लोग लाइव पेंटिंग कर सर लाइव चित्र जौदे के और ही एगो 3 गो लड़का अलन सर वो लोग के एगो सेटअप रहल वर्कशॉप खातिर और ही वो लोग करलन सर जोन जोन फूल जौदे के वो लोग करलन सर फोटो निकलन सर और ही अपन चित्र करलन सर तो ओकर में वो लोग के पारों आल हमने के विजिटर आल हमने के जोन परिवार लोग वो लोग को एविटे रहल तो सब मिलजुल के एगो सेलिब्रेशन रहल जैसे बोली तो लानिवेसे तो है सच्चे के लानिवेसे बनल बस कि एगो वक्त आल वो लोग अपन चाय पिलन सर खाना मिलल सबकी मिठाई मिलल सबके सर्टिफिका मिलल उमें रोटारी क्लब पॉम्पलेमूस हैजा के सब स्टाफ लोग बोटानिकल गार्डन के वो लोग अपन लड़का अनलन सर वो लोग हो पार्टिसिपेट करलन सर एगो फैमिली इवेंट रहल जिससे जोन सेलिब्रेशन होल वो लानिवेसे खातिर सोमन से एगो अलग तरीके से एगो आर्टिस्टिक तरीके से तो है बहुत हाँ बहुत मज़ेदार रहल बहुत प्रसन्नता मिलल सबके एगो जब घरे गलन सर तो ओके हौजा है जौदे में एगो विभासों बा हाँ तो देखब तो चलब तो सब सुंदर बा आँख नम करके जब बैठब तो एगो सो बा एक सो आना चाहिए बा तो पक्षी बा देखब तो कानो बा हो जा हैजा थोड़ा सुन चलब तो सब
सेफ बा टोची बा तो लनाचे में रब तो अपन दिमाग की सब प्रॉब्लम सब स्ट्रेस भुला के मिलजुल के एगो वर्कशॉप होल जोली से सब लोग खुशी से होल तो enfin हमने ऐसे सब बोटानिकल गार्डन ट्रस्ट फंड के बहुत धन्यवाद करीला सर बस कि और रोटारी क्लब पॉम्पलेमूस के और रोटारी क्लब एयरलाइन सर वाकवा एयरलाइन तो सब लोग अपन सुपो दिलन सर ओके और विजिटे हाल वो लोग चलन सर और जो सबके encouragement मिलल parce कि एगो जोली फीडबैक रहल तो देखो आसिया एक्शन फॉर ऑटिस्टिक क्रिएटिविटी की सबसे पुराना एसोसिएशन बा वो 1985 में फॉन्डे होल 1987 में enregistré होल हमने के पहला प्रदान ध्यानेश्वर दुस्वा रहल वो एगो बड़का स्क्रिप्चर है मास्टर तो ओकर एग्जाम से हमने अब ई फ्लॉम्बो कंटिन्यू करते हैं सर तो सब ऑटिस्ट के धन्यवाद सब जो खुद में दिलन सर हम जो जोली जोली आर्टवर्क कला प्रदर्शन हो सब enfin remerciement करते हैं और ये है यूनिटी जो शुरू हो पहला कौनसी हुई है और ये देख बट है लिगेसी है ये जो चीज बा तो चाहेला हमनी के समझे के हमनी आज शर शिवसागर रामगुलाम के एगो ऐसा जोली एक्सपोजिशन करनी सर तो हर एक्सपोजिशन चाहेला घर घर में बने के हमनी के पिताजी के हमनी के दादाजी के हमनी के जो परिवार के तब है ये मिसाज बा हमने लीते में रहिया सर तब सब कुछ खुशी से बनी जी हाँ दर्शकगण लीगेसी से जुड़ल जोन विषय बाते आज एक बारे में बहुत कुछ जाने के मौका मिलल बाते खासकर हमनी के देश के राष्ट्रपिता शिवसागर रामगुलाम से जुड़ल जोन खास गतिविधि ओकर जीवन से जुड़ल जो यात्रा बाते जो अलग अलग प्रकार के जो कार्य उ करले रहलन एक बारे में बहुत कुछ सीखे के और जाने के मौका मिलल बाते बकिर हमनी बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा हमनी के जो मुख्य मेहमान श्री निशाल पबू के एक संगे संगे आसिया संगठन के जितना जो चित्रकार हवन जा और एसएसआर बोटानिकल गार्डन ट्रस्ट फंड के जितना जो मेंबर्स बाते और जितना जो लोग ई कार्यक्रम के ई प्रदर्शनी के साकार कर ले हवन सा उ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगण एकरेवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम के यहाँ पर समाप्त हुआ था बकिर आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब सा तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्कार और आदाब।